हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। एक व्यक्ति आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है जिनका नाम है जेफ बेजोस। तकरीबन हर न्यूज़ एजेंसी ने इनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू को, जो कि इन्होंने CNN को दिया था, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कवरेज दी है इनको। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जेफ बेजोस के बारे में थोड़ा सा कि ये कौन है। तो आप देख सकते हैं जेफ बेजोस चेयरमैन एंड फाउंडर है अमेजोन के, और उनकी एज ऑन डेट रियल टाइम नेटवर्थ जो है $117.5 बिलियन है। कुछ और बातें भी हैं जो फोर्ब्स ने इनके बारे में बताई है कि इन्होंने 1994 में गैराज से ई कॉमर्स जाइंट अमेजोन की शुरुआत की थी। कंपनी में इनकी हिस्सेदारी आज 10% से भी कम है। 2022 में इन्होंने $400 मिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए। और बेजोस के पास दी वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन नाम की दो कंपनियां भी हैं। जो ब्लू ओरिजिन है वो एक एरोस्पेस कंपनी है जो रॉकेट डेवलप करती है। और 2022 में नवंबर में दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने CNN को ये बताया कि इनका प्लान है कि ये मेजॉरिटी ऑफ हिज वेल्थ डोनेट कर देंगे जो भी इन्होंने अपने लाइफ टाइम में कमाई है। और यहाँ पे थोड़ा इनके वेल्थ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे इनकी वेल्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते चली गई। और वर्ल्ड में एज ऑन टुडे ये चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो अब हमें जेफ बेजोस के बारे में पता लग गया है कि ये कौन है, क्या करते हैं और वर्ल्ड में चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो अब हम चलते हैं इनका वो इंटरव्यू देखते हैं। 1.5 मिनट का वो इंटरव्यू है जो एक शॉर्ट क्लिप पब्लिश की हुई है वेबसाइट्स पर। उसको हम देखते हैं और समझते हैं कि इन्होंने अमेरिकन को क्या एडवाइस किया है रिसेशन को लेके। और वीडियो देखने के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि रिसेशन का और इन्फ्लेशन का इंडियन मार्केट्स पर कैसा असर रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। We are in some tough economic times. Yeah. Some people say that perhaps we're already in a recession. Do you think that we're in one? And what is your advice for small business owners? I don't know whether we're technically in a recession. I know economists argue over that and they have certain technical definitions. What I can tell you is the economy does not look great right now. Things are slowing down. You're seeing layoffs in many sectors of the economy. People are slowing down. The probabilities say if we're not in a recession right now, we're likely to be in one very soon. So my advice to people, whether they're small business owners or, is take some risk off the table. If you were going to make a purchase, maybe slow down that purchase a little bit. Keep some dry powder on hand, and wait a bit and see how. Try to reduce some risk in your business or your life. Well, you tweeted batten down the hatches. Mm-hmm. That's what you mean by that? That's what I mean. Well, if you're an individual and you're thinking about buying a new, large screen TV, maybe slow that down. Keep that cash. See what happens. Same thing with a refrigerator or a new car or whatever. Just take some risk off the table. If you're a small business, maybe delay some capital purchases. Do you really need that new piece of equipment? Maybe it can wait a little bit. Have some cash on hand. Just a little bit of risk reduction could make the difference for that small business if we do get into even more serious economic problems. So you got to play the probabilities a little bit. Any idea in terms of what you're hearing or just with your expertise as to how long this recession could last? I don't think even the most experienced economists in the world can answer that question. It's a very challenging thing to try and estimate. So I think you just have to try and be reasonable about it, take as much risk off the table as you can for yourself. Hope for the best, but prepare for the worst. ऑलराइट, तो वीडियो हमने अब देख लिया है। तो इन्होंने मोटा मोटी जो बातें बताई हैं CNN को एक इंटरव्यू में, वो यही बताई है कि रिसेशन आने वाला है और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उनको खरीद के अपने मनी को वेस्ट ना करें, बल्कि मनी को अपने पास रखें एज एन इमरजेंसी फंड। अब हम चर्चा करते हैं कि रिसेशन क्यों आने वाला है, ऐसी कौन सी वजह है। तो हम ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू करेंगे फैक्टर्स का। तो सबसे पहले चलते हैं हम इन्फ्लेशन रेट पर। जो भी G20 कंट्रीज है उनमें इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो इन्फ्लेशन रेट है वो परसेंटेज में दिया गया है। रेफरेंस डाटा कब का लिया गया है वो यहाँ पे मंथ मेंशन है। ऑलमोस्ट सभी फिगर्स अक्टूबर के हैं, एक आधे को छोड़कर जो कि सितंबर के हैं। तो हम मेजर कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रशिया 12.6% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है जो अक्टूबर में था। यूके में 11.1%, जर्मनी में 10.4%, यूएस में 7.7%, कनाडा में 6.9% और इंडिया में 6.77%। तो इतनी महंगाई G20 कंट्रीज में चल रही है आज के दिन। अब देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस लिस्ट में डेवलप्ड नेशन है और आपको मालूम होना चाहिए कि एक डेवलप्ड नेशन
इन्फ्लेशन की जो इन्फ्लेशन रेट है वो मैक्सिमम 2% से ज्यादा कभी होती नहीं है। और जो दो फैक्टर्स जिसकी हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ही कम होना चाहिए। जितना कम ये गैप रहेगा उतना ही स्टेबल उस देश की इकोनॉमी रहेगी। जैसे कि इंडिया में आरबीआई ने जो रेंज सेट कर रखी है इन्फ्लेशन की वो है 4% ±2%, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में अगर महंगाई है तो हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम है। तो सितंबर में जो थी वो 7.41 थी, जो कि घटकर 6.77 हो गई, जो कि अच्छी बात है। अब चूंकि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो जब ग्रोथ किसी कंट्री में ज्यादा रहेगी तो नेचुरली है उस देश में इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा ही रहेगा। लेकिन एक डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करें जैसे कि यूएस, तो यूएस में अगर आप देख रहे हैं 7.77% की इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 2% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में बहुत ही ज्यादा गैप है। उसी के चलते यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं काफी तेजी से। नेक्स्ट हम चलते हैं कि करेंसी का क्या हाल है। तो आप अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यूरो वर्सेस यूएसडी का क्या चल रहा है अभी। अब अगर आपने पहले कभी नोटिस किया हो तो यूरो का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ करता था। जैसे कि अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो जो मुझे याद है पहले कभी 80 रुपए में 1 यूरो आता था और 70 रुपीज के आसपास 1 यूएस डॉलर आता था। तो इसमें पता लग रहा है कि 1 यूएस डॉलर के लिए यूरो जो देना पड़ेगा वो 1.0234 देना पड़ेगा, जो कि पहले कम हुआ करता था। सेम अगर हम यूएसडी टू आईएनआर की बात करें तो आज 82 रुपए के आसपास हमें पे करना पड़ेगा अगर हमें 1 यूएस डॉलर परचेज करना है। तो सेम वे यूएसडी टू जेपीवाई यानी कि येन, अगर 1 यूएस डॉलर परचेज करना है तो जापान को 140 येन देने पड़ेंगे। तो अब आप ये समझ गए हैं कि यूएस डॉलर यानी कि यूएसडी वो काफी स्टेबल करेंसी मानी जाती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूएस डॉलर में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चाहे कुछ भी क्रैश हो जाए यूएस डॉलर क्रैश नहीं होगा। इवन यूरो भी क्रैश हो गया था बीच में ड्यू टू वार और इन्फ्लेशन, लेकिन यूएस डॉलर अभी भी काफी स्टेबल है। तो अब हम चलते हैं कि इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिसेशन के बारे में। तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, ये बोलते हैं कि इनको लगता है कि लो रिस्क ऑफ रिसेशन है इंडिया में, और उसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने यही बताया है कि 2 आई का डिफरेंस, जिसको हम इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन दोनों के बीच का गैप इंडिया में सबसे कम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी के चलते वहां पे महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन इंडिया में अभी भी काफी कंट्रोल्ड सिचुएशन है। तो इंडिया में वर्ल्ड के कंपैरिजन में जो रिसेशन का जो रिस्क है वो काफी कम है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे वर्ल्ड में अगर रिसेशन आता है तो इंडिया पे उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन नहीं है। इंडिया अपनी सारी जरूरतें खुद से ही मैनेज नहीं कर सकता है, इसके लिए इसको दूसरे देशों पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे कि ऑयल के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से, तो इंडिया पे भी कुछ ना कुछ फर्क तो आपको दिखेगा। और आजकल जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं जितने भी ले ऑफ हो रहे हैं उसके चलते भी इंडिया में एक फियर बन गया है लोगों के माइंड में कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब इंडिया में इसका कितना इंपैक्ट आएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें जेफ बेजोस जी के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में जो बातें हैं उन्होंने बोली है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कोई भी अननेसेसरी आइटम पे पैसा स्पेंड नहीं करना है, मनी को सेव करके चलना है। अगर रिसेशन आता है और मार्केट पे इंपैक्ट आता है हमारी पे, तो डेफिनेटली उस टाइम हमें इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि स्टॉक्स काफी कम रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे जो आज काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा मौका वंस इन ए डेकेड आता है, ये मौके बार बार नहीं आते, जैसे कोविड जैसा मौका और ये वॉर वाली सिचुएशन और रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो इसका इंपैक्ट भी आपको स्टॉक मार्केट पे काफी बड़ा देखने को मिलेगा और वही अच्छा मौका होगा एक इन्वेस्टर के लिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। जैसे जैसे और भी ज्यादा डेवलपमेंट्स आते रहेंगे या कोई न्यूज आते रहेंगी रिसेशन या इन्फ्लेशन के बारे में, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो इसी के साथ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो हैव ए गुड टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।